एक ही दिन पे 12 के 12 इन्वेस्टर्स ने मना कर दिया एंड आई वाज लाइक शिट, ये क्या हुआ। टर्म शीट साइनिंग एसएसएच डजंट मीन एनीथिंग टिल द टाइम यू गेट फंड्स इनटू योर अकाउंट। आपने जब फंड दिए, आपने बोला स्केल अप करो स्केल अप करो स्केल अप करो, उसने महीने का 50 लाख रुपए बर्न करके स्केल अप कर दिया। अब उसको पता ही नहीं है, उसकी परवरिश उस तरीके से हुई है कि उसको यही नहीं पता प्रॉफिट होता क्या है। फॉर अ सीड राउंड ऑल्सो यू नीड एटलीस्ट 4 to 5 months डेडिकेटेडली ऑन फंड रेजिंग। यू हैव टू वर्क 15 to 18 hours अ डे अगर आप फंड रेजिंग कर रहे हो। Hello, everyone. Welcome to the Ground Zero podcast. Today, we have with us Mr. Bharat Bansal, co-founder and CEO at Nirmalya. Nirmalya wants to change how traditional fragrances get consumed, and the brand produces products that are chemical-free, low-carbon, and eco-friendly. They have recently raised a seed round from Artha Ventures, Shiprocket, and other marquee angels, and are well-positioned and capitalized to capture the global natural incense market. Hi, Bharat. It's great to have you here. Hi Yash, thank you so much for having me here. And I think this is my first live podcast that I'm doing, and I'm very excited about it. Yeah. For today, we'll largely cover 4 broad topics, Right. Bharat. Firstly, we'll try to understand a bit about you as an individual and how did you get into entrepreneurship in the first place. Right. We know that you have launched 2 successful ventures, and that's the first thing that we'll talk about. Then we'll go on and we'll take a deep dive into the fundraising process, and we'll break it down into 3 parts. First, we'll talk about the pre-fundraising preparedness. Secondly, we talk about what happens during a fundraising process, and we'll cover various topics such as investor meetings, term sheets, investor due diligence, etc. And finally, we'll talk about what one needs to do post a fundraise process. Right. Excited to have this conversation with you, Bharat. So Let's am get I, started. yeah. Bharat, can you tell us a bit about your background and your journey so far? Right. And if you can share a deep insight about the problem that you're solving at Nirmalya today. So my family is entirely a family of chartered accountants, and I had a very good amount of burden on me to become a chartered accountant. But fortunately, I am a CA dropout. I did my law like from a very local college, but entering into an entrepreneurship. So one of our accounts teacher once said in the class that you are working like 12 hours for somebody else. Try doing this for yourself. That day, I kind of decided कि अपने लिए करके देखते हैं एक बार and let's see what happens. So fortunately, I think God has gifted me with a little bit of common sense. कि मैंने जब भी I started my last company, तो मैंने उससे पहले ना अपनी पूरी वर्किंग कर ली थी कि मैं किस किस को जानता हूँ, मेरे डैड किस किस को जानते हैं, एंड मैं उनकी रेफरेंस से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ जस्ट फॉर द बिजनेस डेवलपमेंट ऑफ माई कंसल्टिंग कंपनी. एंड माई डैड वॉज लाइक यार तू CA ड्रॉप आउट है, तेरे को कौन काम देगा. एंड आई वॉज लाइक यार वो आई देख लूँगा, मतलब अदरवाइज आपकी प्रैक्टिस है, आई कैन एनी डे गेट बैक. तो बट येस, वी स्टार्टेड एंड वी गॉट वन ऑफ द फूड कंपनीज एज आवर फर्स्ट स्टार्टअप क्लाइंट, एंड देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक. बिकॉज हमें एक चीज़ क्लियर थी कि मेहनत से सब कुछ हो जाएगा. हमने अच्छी खासी मेहनत करी, वी गॉट गुड रेफरेंसेज एंड देन वी गॉट गुड क्लाइंट्स. सो I built that company to a team of 30 plus people and 100 plus clients. And then one of my very initial clients, Rajiv, who is the third founder in the company, he came to me and he pitched me the idea of making agarbattis from flowers. So Rajiv visited Shirdi like 6 months before we started. He saw that idea. He saw the process of conversion of flowers into incense sticks. तो ऐसे साई बाबा के आगे ऐसे there were some ladies sitting and they were sorting flowers. एंड ही सॉ दैट कि ये कहाँ पे जा रहे हैं फ्लावर्स सॉर्ट होके. तो वहाँ पे पूरा तो शिरडी में क्या है, मंदिर के अंदर ही दुकान है जो अगरबत्ती बेचता है. तो उसके ऊपर उन्होंने देखा कि ये फूलों से बनी हुई है. देन ही काइंड ऑफ इंक्वायर्ड और सो द प्लांट देयर इज़ बीन रन बाय जन सेवा फाउंडेशन. तो उन्होंने पूरा इंक्वायरी करी उसकी. तो वी वेंट टू CSIR लखनऊ, दैट्स द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. वहाँ पे उनके पास पेटेंट्स है फॉर इंसेंस स्टिक्स मेड फ्रॉम फ्लावर्स. सो वी गॉट द पेटेंट्स फ्रॉम देयर एंड हमने एंड राजीव ने ही पूरी रिसर्च करी प्रोडक्ट के ऊपर. ये चीज़ मैंने शार्क टैंक पे भी बताई थी दैट ऐसा नहीं है कि हर बंदा अगरबत्ती बना सकता है फ्लावर से, क्योंकि फ्लावर की एक अपनी बर्निंग स्मेल होती है एंड इट इज़ नॉट ईजी टू ओवरकम दैट स्मेल इफ़ यू विल फॉलो द राइट रेसिपी. सो वी हैड टू मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द इंसेंस स्टिक्स एंड देन वी मेड द प्रोडक्ट. एंड राजीव ने मुझे जब ये आइडिया पिच करा, सो ही वॉज रनिंग अ अफोर्डेबल ब्रांड एट दैट टाइम. सो आई वॉज लाइक कि नहीं, हम लोग अफोर्डेबल मार्केट में नहीं जाएंगे, एंड देर आर ऑलरेडी जायंट प्लेयर्स हु आर डूइंग दिस.
So if I have to come, I'll restructure the whole brand and the company, and then I'll come. So he kind of agreed, and then we started Nirmala in October 20. Amazing. No, that's a super interesting journey. Yeah. And I just want to understand, how did you convince your first client at Ban Bros? Like, that's for the audience at least. They would definitely want to know, how did you convert that first client? Right. So I used to go to my dad's office from Monday to Saturday, and one of our relatives who was my first client, he asked me कि मुझे accountant चाहिए, and I was like कि मैं ही कर दूँगा आपका काम. तो मैं मंडे टू सैटरडे डैड के साथ ऑफिस जाता था, और मैं संडे को जाके उसके यहाँ पे काम करता था. सो देवर नो वीकेंड्स फॉर मी कि अब मैं आराम करूँगा. सो इनिशियली 2-3 महीने मैंने इस तरीके से काम करा, एंड देन जब थोड़ा सा स्केल अप होना शुरू हो गया, देन आई आज माई डैड कि अब मुझे थोड़ा सा टाइम फ्री चाहिए, 1 दिन हफ्ते में 2 दिन, एंड दैट्स हाउ आई बिल्ड द कंपनी. So one thing led to another, and the Right, clients started right, referring you, right, and then right, that is right, where you built your client base. So did you get someone on board with you as well, or you were Yeah, handling so that? like after an year of my practice, one of my friends, so he was not a very good friend of mine, but it's like कि हमें वाइब पता होती है एक दूसरे की. So I kind of asked Vipul कि तुझे प्रैक्टिस करनी है, and he was working with EXL at that time. Okay. So उसने बोला हाँ मुझे करनी है, and I was like कि ठीक है करते हैं फिर. And after an year I got Vipul in, and Vipul handles all the operations, and I used to handle all the business development for Ban Bros. You've been very lucky, because finding a co-founder twice Right. in a span of Right. 3 years, it's Yeah, so I've been quite lucky in terms of co-founders in Nirmalia as well as in Ban Bros. No, amazing. But I want to double click on your experience at Bambros again. Can you share some interesting stories or moments or anecdotes which instilled confidence in you to leave your consulting practice behind and start a disruptive and change making organization that Nirmalya is today? So my first startup client was Satviko. So Satviko was a food company. Yeah. They make flavored makhanas, and I think it was the only brand at that time who was doing this. बाद में मिस्टर मखाना and बहुत सारे brands आ गए. तो Prasoon, he is a very dynamic founder, and now he has become, I think, a yoga guru or something. He has like practiced yoga so much, and so सात्विको से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि फूड, सो FMCG है इनिशियली, लाइक फूड भी FMCG और अगरबत्ती भी FMCG है. तो हमने उनसे ये सीखा कि किधर किधर चीज़ें प्लेस की जा सकती हैं, एंड प्रसून इन द फर्स्ट प्लेस टॉट मी हाउ टू नेटवर्क. प्रसून सात्विकों की क्वार्टरली पार्टीज होती थी जहाँ पे वो सबको बुलाते थे, एंड फ्रॉम देयर आई लर्न हाउ टू एक्चुअली नेटवर्क. तो फिर वो कीड़ा था, एंड सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, he runs a brand called Audi Stationery. Yeah. Audi Stationers. So he is a MBA marketing from gyms, but he has a very good experience in terms of like marketing and all that stuff. So मैंने उनसे पूछा कि मुझे ना बड़ा ऐसे सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी हर्ट होती है जब मेरे कोई फ़ोन का रिप्लाई नहीं करता या मैसेज का रिप्लाई नहीं करता. तो ही वाज लाइक कि सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ नहीं होता है, अगर आप मार्केटिंग में हो तो फिर ये सब चीज़ें भूल जाओ, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट विल कम जब आप एक्चुअली कुछ बना लोगे, उससे पहले कुछ नहीं होता. सो दिस एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट इन फॉलोइंग अप, कि इंसान रिप्लाई नहीं भी कर रहा है तो भी मैं पीछे पड़ा रहता था. एंड दैट्स हाउ आई गॉट माई फर्स्ट क्लाइंट प्रसून ऑल्सो, कि मैंने 3 महीनों के साथ लगातार फॉलोअप करा, लाइक हर हफ्ते, चाहे वो मुझे हर हफ्ते मना कर देते थे, बट मैंने फिर भी फॉलोअप करा, एंड दैट्स हाउ आई गॉट माई फर्स्ट क्लाइंट. तो एक वो चीज़ तो प्रसून ने नेटवर्किंग सिखाई. देन वी लर्न कि हाँ कहाँ पे फूड प्लेस होता है, क्या क्या चैनल्स होते हैं, मॉडर्न ट्रेड होता है, जनरल ट्रेड होता है, उनमें डिस्टिंक्शन हमें पता चली. सो दिस इज़ हाउ वी लर्न. देन माई नेक्स्ट बिग क्लाइंट वॉज क्लियर देखो. क्लियर देखो में शिवी ने मुझे फंड रेजिंग सिखाई, फंड रेजिंग कैसे होती है. सो शिवी हैज़ लाइक बीन थॉरो विद ऑल द फंड रेजिंग प्रोसेस. ही हैज़ बीन थ्रू अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, एंड उन्होंने मुझे सिखाया कि फंड रेजिंग कैसे होती है, कहाँ पे क्या करना चाहिए, कहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए. सो एंड ही गेव मी कॉन्फिडेंस कि सर आप कर लोगे, आप स्टार्ट करो, आप कर लोगे. लाइक ही हैज़ सीन मी वर्किंग फॉर Ban Bros. सो ही टोल्ड मी कि नहीं सर आप करो, यू विल बी एबल टू डू इट. So you've not just been lucky when it comes to co-founders. Right. You've been lucky in terms of friends, the Right, clients as right, well. right. They've been very supportive to you. Right. Makes sense. So no, that's actually that's lovely to hear, Bharat. I would now want to move to the most meaty part of the conversation, which is fundraising. Right. But before we dive deep into the nuances of fundraising, for the audience, can you break down the fundraising process? Also, when starting out a consumer product business,
How should one make a decision on whether they should raise from VCs in the first place or not? And finally, if the answer is yes, how do you gauge if you are even ready for a fundraise in the first place? Right. So I think everybody should define the reason why they are raising funds. That's very important. Secondly, like the stage to decide that you need funds or not is your goals, or for example your objectives that you want to achieve, and how fast you want to achieve them. So like it is a very vague example. When I started my Banbros Consulting, so Banbros is a short form for Bansal Brothers. So when I started that company, I had a comparison of my own with Bain and Company. Okay. कि बेन एंड कंपनी 40 साल में 14,000 करोड़ की प्रैक्टिस कर रही है, मैं भी 40 साल में 14,000 करोड़ की प्रैक्टिस करूँगा. एंड देन आई बैक कैलकुलेटेड कि मुझे 2 साल में कितना करना है, 4 में कितना करना है, 6 में कितना करना है, 8 में कितना करना है. तो फंड रेजिंग डिपेंड्स ऑन कि आपको कितना जल्दी स्केल अप करना है, हाउ सून यू वांट टू बी ऑन द शेल्व्स. सेकेंडली, आर यू रेडी टू डाइल्यूट? बिकॉज दिस इज़ अ वेरी बिग कोनोटेशन और in the minds of the people कि हमें अपना इक्विटी नहीं डाइल्यूट करना है, फिर वी शुड बी द ओनली ओनर्स ऑफ द बिजनेस. अगर आपको डाइल्यूट करना है एंड यू आर रेडी टू स्केल अप, यू शुड रेज फंड्स. If I talk about my reasons to raise funds, I raise funds because of 2 reasons majorly. First, it actually gives you access to the people which is not possible otherwise. Like very good founders in the industry, very good founders of the giant companies, because they are all LPs with funds. So you get access to those people. And secondly, I want to know like what value I have created over the time. कि आज मेरी कंपनी की इतनी वैल्यू है, 1 साल बाद मेरी कंपनी की इतनी वैल्यू है. सो आई शुड नो कि मेरी कंपनी की कितनी वैल्यू है, विच फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कम्स फ्रॉम द फंड्स इटसेल्फ. Yes, I think you should raise. So there are. I'll not say you should not raise from VCs. There are early stage funds. There are late stage funds. There are mid stage funds. So start raising from early stage funds, because VCs will teach you professionalism. VCs will structure the whole thing कि आपका MIS पूरा structured है कि नहीं है. तो analysis VCs आपको सिखाते हैं, because they actually specialize in that. जो I think आपको angel investors individual level पे नहीं सिखा पाएंगे. Yeah. So that's the thing. Also, can you break down the process? Right. Of, So fundraising? So there are I think 3 processes. First is the preparation part. Okay. Second is being due diligence ready. Okay. And the third is raising funds, pitching to the investors. Okay. And then obviously the things that happen after that, the investors meeting and all that stuff. Makes sense. Yeah. Makes So sense. in the preparation part, I think so this my accelerator taught me कि we should have our list ready. कि first list में हमें इनको pitch करना है, second में हमें इनको pitch करना है, third में हमें इनको pitch करना है. We were fortunate to raise fund in the first list itself. अब इसमें 2 चीज़ें आती है कि आपको एंजल प्लेटफॉर्म से भी रेज करना है कि नहीं करना है. सो फॉर मी रेजिंग फ्रॉम एंजल प्लेटफॉर्म वॉज अ लेटर प्रायोरिटी कि अगर VC से मैं नहीं रेज कर पाऊंगा तो मैं एंजल प्लेटफॉर्म से रेज करूँगा. Then being due diligence ready, this also I learned from one of the founders of a tech company. We actually helped him raise funds from our contacts. So एक दिन वो मेरे पास आता है कि भरत मुझे I want to raise 200K from you. मैंने कहा ठीक है मैं करवा दूंगा. एंड देन ही वॉज लाइक गायब फॉर अ मंथ और सो. उसके बाद वो वापस आता है, कहता है हाँ अब मैं रेडी हूँ. मैंने कहा रेडी हूँ मतलब? कहता मैं 1 महीने तक अपना ड्यू डिलिजेंस का सारा प्रोसेस और डेटा इकट्ठा करा था. दैट आई वॉन्ट टू बी सो रेडी कि मेरे पास लिस्ट आई और मैंने डेटा भेज दिया. सो विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग इन टर्म्स ऑफ दिस शोज़ कि आप कितने रेडी हो, आप कितने कॉन्फिडेंट हो और आप कितने प्रोफेशनल हो. सो आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन इट कम्स टू बीइंग ड्यू डिलिजेंस रेडी. एंड आपको अपने शॉर्टकमिंग्स पहले से ही पता होने चाहिए. जैसे मैंने अपने इन्वेस्टर्स को पहले ही बता दी थी कि भाई 3 चीज़ें आपको नहीं मिलेगी मेरे यहाँ पे, विच आई एम नाउ फोकसिंग ऑन, एंड अब आपको नेक्स्ट फंड रेज में मिल जाएगी फॉर एग्जाम्पल. क्योंकि नथिंग शुड कम एज अ सरप्राइज फॉर देम ऑल्सो एंड फॉर यू ऑल्सो, बिकॉज आपके ऊपर ज़्यादा बड़ा सरप्राइज आएगा. उनके लिए रेगुलर है वो चीज़, आपके लिए रेगुलर नहीं है. तो आई थिंक यू शुड बी ड्यू डिलिजेंस रेडी एंड देन पिचिंग टू द इन्वेस्टर्स कि आप किस किस को पिच कर रहे हो, द राइट काइंड ऑफ फॉलोअप्स, एंड स्पेशली आस्किंग फॉर फीडबैक. अगर आपको कोई इन्वेस्टर रिजेक्ट करता है कि वाई दे रिजेक्टेड यू, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट विल एक्चुअली टीच यू ऑन वॉट एरियाज यू नीड टू इम्प्रूव वाइल पिचिंग,
or in the business also. No, that's actually very helpful. Bharat, you mentioned about critical step in the fundraising process, and I want to specifically focus on creating investor-ready pitch decks now. Right. I would want to deep dive into the pitch deck creation process and understand what are these slides or these presentation material that are absolutely relevant for investors today, and they spend considerable amount of their time when they evaluate that. Also, what are these common metrics that today investors look at when they're investing in CPG brand like yours? And if you can help us with some benchmarks around this industry. Right. Yeah. So there is a majorly set format for a pitch deck if I talk about D2C brands Yeah. or CPG brands. So there's a problem slide initially, then there is a solution slide, or some pitch decks have the team slide after the first slide, which is the heading and everything, which has a brand logo. The second slide can be a team slide, then problem solution, how you are solving this problem, then the market size, and then what is the product portfolio slide, for example. Then for example, what has been your journey, then your financials, that what is your repeat rate, what is your customer acquisition cost, what is the gross margin, what is the net margin, like how has been the growth in last few months or few years, and then how much is your ask, for example, and where it will be utilized, and then the last slide, thank you slide. So I think these are the basics of a pitch deck that I think in the same, I have seen a lot of pitch decks, and in the same format we have all these slides. Then I think, sorry, what was the second question? So, what are these? One, we want to talk about what are these slides where investors are spending the considerable amount of their time Right. and actually help them change their decision Right. from investing to not investing? Right. And what are these benchmarks in the industry today for the most important metrics that investors So look at in the CPG I space? think I think pitch deck is just a part where, so अगर इन्वेस्टर ने आपका पूरा pitch deck देख लिया ना तो वो interested है, for example. And the most important metrics is कि आपका competitor कौन है, and the team slide की आपकी team कितनी strong है, from where you come. So जैसे none of the V3 founders are from IIT or IIM, or yes, Surbhi is a chartered accountant, I am a lawyer, and Rajiv is a normal graduate. But we were fortunate enough कि हमने जब pitch करा तो investors को लगा कि हाँ यार founders कर लेंगे. तो हाँ, एक आपका ग्रॉस मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज FMCG में अगर आपके ग्रॉस मार्जिन 55-60% से कम है तो आप यू कैन नॉट सक्सीड. आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा वो बहुत लेट आएगा. सो ग्रॉस मार्जिन वाली स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. Makes sense. Bharat, also you mentioned about due diligence process Right. and one of your clients keeping a repository of all the data, documents right. 1 month before the before they start the fundraising process. I think that's a great practice. Yeah. But can you double down on this? Can you double down on this due diligence process and talk a little bit more about it? On how do you actually do that? What are these materials that you need to keep in mind beforehand? And when you're starting a company, how do you maintain these MIA statements or these PNL statements? Can you just talk a bit about that? So I think the first focus is on the very basic things of like compliance, कि मेरी GST के रिटर्न सही टाइम पे गई हैं, उसके अंदर कोई पेनल्टीज तो नहीं है. मेरी TDS के रिटर्न सही टाइम पे गई हैं, सारी पेनल्टीज वगैरह सब कुछ सॉर्टेड है. बिकॉज क्या होता है कि आपकी ड्यू डिलिजेंस खत्म हो जाएगी और एक छोटा सा पॉइंट आ रहा होगा कि आपका 100 रुपये की ना TDS की पेनल्टी नहीं पे हुई, आप उसको पे कर दो. दैट इज़ अ कंडीशन सब्सिक्वेंट इन दी बिफोर साइनिंग द SSHA, विच इज़ टेक्निकली इमटेरियल, बट ठीक है. आई थिंक वो ड्यू डिलिजेंस टीम का पार्ट है, तो वो उसको हाईलाइट कर देते हैं. तो हम लोग बहुत बेसिक कंप्लायंस से शुरू होते हैं, GST, TDS, देन सेक्रेटेरियल के आपकी बोर्ड मिनट्स और जनरल मीटिंग मिनट्स रेडी हैं कि नहीं है, आपके जितने भी शेयर होल्डर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, एवरीथिंग दैट इज़ रेडी और नॉट. तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं. एंड आई थिंक सारी ड्यू डिलिजेंस कंपनीज जो भी ड्यू डिलिजेंसेस करती हैं उनकी सबकी लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेम होती है. डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. टेक है तो और कुछ मांग लेंगे. तो लीगल और फाइनेंशियल दो तरीके की ड्यू डिलिजेंस होती है फॉर D2C स्टार्टअप्स. देन आई थिंक फॉर अ D2C स्टार्टअप द मेन थिंग इज़ इन्वेंट्री. तो उनके इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स हैं कि नहीं है, या फिर वो कितने एफिशिएंटली अपने इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स प्रोवाइड कर पा रहे हैं. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वो आपका ना आई थिंक
सीड स्टेज पे फिर आप उसको एक बार को स्किप कर सकते हो, बट यू शुड नॉट स्किप, मतलब दैट आई एम सेइंग बाय एक्सपीरियंस, बिकॉज हमारे इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स नहीं थे उस टाइम पे। तो बट हमने इन्वेस्टर को पूरा एक्सप्लेन करा कि हमारे पास कितने दिन की इन्वेंट्री होती है, हमारे पास कितने दिन के रिसीवेबल्स होते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली फाइनेंशियल रेशियोज आर मेड फॉर समथिंग एंड उनका कुछ मतलब है, तो वो सब आपका बिजनेस उस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं। तो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। हाँ, आई थिंक सीरीज़ ए या सीरीज़ बी में जाके वो ड्यू डिलिजेंसेस और ज़्यादा हार्ड होते जाते हैं। जो कंपनीज ड्यू डिलिजेंसेस करती है वो भी, उनका भी एवोल्यूशन, मतलब फॉर एग्जांपल यू गो फ्रॉम अ नॉर्मल सीए फर्म टू ईवाई सीरीज़ ए सीरीज़ बी में, तो वहाँ पे वो लोग ये देखते हैं कि आपका जब सामान दरवाजे तक आ गया है वो कितनी देर में जाके स्टैक हो जाएगा आपके शेल्फ्स में, और बाहर कितनी देर में आ जाएगा, बिकॉज दैट एक्चुअली शोज द एफिशिएंसी ऑफ योर प्रोसेसेस। तो ड्यू डिलिजेंस में वो सब चीज़ आती है, बट सीड स्टेज पे अगर आप नॉर्मल कंप्लायंसेस और अपनी अकाउंटिंग परफेक्ट रखोगे तो सब कुछ सही रहेगा। फिर आपके पास डेटर कन्फर्मेशन है कि नहीं है, एंड देयर शुड नॉट बी एनी फ्रॉडुलेंट थिंग इन दी बुक्स, वो वैसे भी नहीं होनी चाहिए, बट बुक्स में फॉर एग्जाम्पल तो आप अपना बुक्स जितना सॉर्टेड रखोगे और अपनी कंप्लायंसेस जितनी सॉर्टेड रखोगे, आई डोंट थिंक सो आपको ड्यू डिलिजेंस में कोई प्रॉब्लम आएगी। फ्रॉम अ टेक परस्पेक्टिव ऑब्वियसली द एज मच डेटा एज यू कैन हैव, वो उतना ज़्यादा बेटर होता है कि आपके ट्रैक्शंस क्या हैं क्या नहीं है, एंड ऑल दैट स्टफ। Got it. So the insight from this due diligence process is that for D2C brands essentially, Yeah. we have to keep all the inventory records in check. Right. That is the absolute Right, important, right. because they'll go back and check those financial ratios. Right. And yeah, makes sense. Bharat, over the years, I've interacted with a lot of entrepreneurs who aspire to raise from venture capitalists, Right. and they get really bogged down on how does one determine the right amount to raise in a seed round, and striking the right balance between valuation and the amount to be raised would be supremely useful if you can demystify that for our audience. Right. And further touch upon the implications of having both a high valuation or a low valuation in the first place. So I think first thing that people need to realize is equity is very expensive. कुछ लोग इनिशियली, जैसे जो बहुत अर्ली स्टेज फाउंडर्स होते हैं या फिर जो बहुत नए फाउंडर्स होते हैं, उनको लगता है कि यार कोई बात नहीं, अगर ये 2% मांग रहे हैं तो मैं इसको 2% दे देता हूँ। तो what आर यू गिविंग फॉर दैट 2%? दिस आई थिंक दिस शुड कम इन द फर्स्ट प्लेस कि आप उस 2% के लिए वो आपको क्या देगा, बिकॉज उस 2% की वैल्यू किसी दिन जाके 20 करोड़ होने वाली है। तो आई थिंक वो एक चीज़ मैटर, वो आई थिंक सबसे पहली चीज़ है कि आपको यू शुड नॉट डिस्ट्रीब्यूट इक्विटी फ्रीली। सेकेंडली, कमिंग ऑन टू कि मुझे कितना पैसा रेज करना है, वो आपके प्रोजेक्शंस पे डिपेंड करता है। एंड ऑनेस्टली आई एम सेइंग दिस, बिजनेसेस आर नॉट बिल्ट ऑन एक्सेल शीट्स, सो वन शुड हैव वेरी रियलिस्टिक टारगेट्स कि मैं कितना अचीव कर सकता हूँ। आप बोलो कि यार मेरा अभी तो 1 करोड़ हो रहा है, मेरा अगले महीने ना 10 करोड़ हो जाएगा, या तो आपके पास L&T से ऑर्डर आ गया तब तो 10 करोड़ हो जाएगा, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल टेक्निकली। आई विल नॉट से इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कि आप 1 करोड़ से अगले महीने 10 करोड़ कर दोगे। तो आपके जो टारगेट्स हैं वो बहुत रियलिस्टिक होने चाहिए, आपकी जो कॉस्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिकली आपने एलोकेट करी है और आपको पता है कि आपकी क्या क्या कॉस्ट है। तो आपको ये देखना है कि यार मेरे को फॉर एग्जांपल 12 या 18 महीने के रनवे के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए अगर मैं बर्न करता हूँ, तो ±20% आपको उतना फंड रेज करना चाहिए, क्योंकि वी नीड टू हैव एटलीस्ट 18 to 20 months ऑफ रनवे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कम्स टू वैल्यूएशन। आप जो फॉर एग्जांपल वैल्यूएशन सोचते हो, ज़रूरी नहीं आपको वो वैल्यूएशन मिल जाए। देयर विल ऑलवेज बी नेगोशिएशंस, और इट एक्चुअली डिपेंड्स कि आपको कितनी, मतलब ये ना बहुत डिफ़िकल्ट है जज करना कि आपको फंड्स चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब क्योंकि क्या है, फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हैं मुझे तो 50 करोड़ की वैल्यूएशन चाहिए, वीसी बोल रहा है कि मैं तो 20 करोड़ दूंगा, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कितनी नीचे आना है, क्योंकि आप 20 करोड़ पे आ गए तो हो सकता है वीसी मना भी कर दे। ये वही वाली बात है कि मैं दुकान पे गया, मैंने बोला यार 1000 रुपये की चीज़ है, तू 500 में दे दे, अच्छा कहते 500 ले जाओ, कहते यार शेड में 250 की बोल देता तो ये वही वाली चीज़ है। तो इट इज़ वेरी हार्ड कि आपको किस वैल्यूएशन पे अपना आपको सेट करना है। तो दिस एक्चुअली डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी एंड फाउंडर्स टू फाउंडर्स। व्हाट यूजुअली द मल्टीपल्स यूज टू बी, जब इकोसिस्टम अच्छा खासा चल रहा था, और 5 और 6, आज के टाइम पे 3 है 4 है, मतलब 4 पे कोई दे देता है तो अच्छी वैल्यूएशन है वो काफ़ी। शार्क टैंक में यूजुअली 1.5 और 2x के मल्टीपल पे आपको फंडिंग मिलती है Of the revenue. यूजुअली, यस, ऑफ द रेवेन्यूज। सो इट्स लाइक जो आपकी लास्ट 3 महीने की रेवेन्यूज़ है
दैट्स योर MRR, एवरेज MRR into 12 is your ARR, and ARR का 3x is or 4x is your valuation. Okay. So in today's time when there's funding winter, Yeah. 4x really works out. 4x तो मतलब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज there are funds who are giving it at 2x 3x, उससे ज़्यादा नहीं मिल रहा. So gone are those times when you used to get 8x, So 10x yeah, valuation. so अभी क्या है, अभी ecosystem has matured a lot. मतलब I have been like on the other side of the table when ecosystem was actually on a very high on a very rise. बट अब नाउ व्हेन आई एम ऑन दी अदर साइड ऑफ द टेबल, जब मैं कंसल्टिंग कर रहा था तो मैं देखता था कि यार बहुत सही हो गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है. अब जब मैं फाउंडर बन गया तो मुझे समझ में आता है कि यार अच्छा इतना मैच्योर हो गया इतने दिन में. तो अब इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका है, एंड आई थिंक इट्स गुड कि इकोसिस्टम मैच्योर हो रहा है. फालतू के बिजनेसेस नहीं बनेंगे, फालतू का लोगों का पैसा नहीं ख़राब होगा, बिकॉज अल्टीमेटली VC मनी इज़ पीपल्स मनी. VCs भी दूसरे लोगों से रेज करके आपको फंड दे रहे हैं. तो देर आर कंपनीज जो टेक कंपनीज जो 3-5 साल बाद बंद हो गई और कहते हैं यार हमसे ना गलती से ओवर हायरिंग हो गई थी. तो आई थिंक अब बिजनेस ना सस्टेनेबल तरीके से बनेंगे. एंड वो ना अमन गुप्ता ने एक बार शार्क टैंक में बोला था कि व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ बिजनेस, इट इज़ सर्वाइवल. तो आई थिंक सस्टेनेबल बिजनेस बनाना बहुत ज़रूरी है. येस यू बर्न मनी, वी आर ऑल्सो बर्निंग मनी, बट हमें पता है कि यार हमें इसी लेवल तक पैसा बर्न करना है, हम उसके बाद बर्न नहीं करेंगे. तो वो वाली चीज़ है. But there are funding cycles, right? Right. I think there's this funding winter which has come in almost 6-8 months back, and now this might go on for another say 6 months, 8 right, months, 1 year. right. But then again, there would be a funding boom. Maybe another sector rises. Right. A lot of funding happens there. Right. I think for preventive healthcare is one of the Yes, sectors yes. which is growing. So I think these cycles keep going up. Sustainable businesses keep building up, but then there are new businesses that come up that actually takes a lot of those funding from the market. Right. So what is your take on that? So firstly funding winter is because कि क्योंकि US में recession है, major of the funds come from US only. तो like I was hearing the speech of Deepak Bagla, who is the managing director of Invest India. He was telling कि 1947 से till date हमारे पास $950 billion की FDI आई है roughly, out of which 532 billion has just been in last 90 months. So वो FDI is the main source of VC funding in India. और I think फंडिंग विंटर ना उनके लिए होती है जो एक्सेस वैल्यूएशन चाहते हैं या फिर जो एक्सेस बर्न करना चाहते हैं. अगर आप सही तरीके से बिजनेस चलाओगे ना आपको SSH की कोई टर्म डिस्टर्ब करेगी, ना आपको फंडिंग विंटर डिस्टर्ब करेगी. हाँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लग सकता है, बट आई डोंट थिंक सो कि आप फंड नहीं रेज कर पाओगे. VC वगैरह ये सब चीज़ें लोगों को अभी पता चली है, फंडिंग बहुत पहले से चल रही है. थॉमस कुक इज़ आई थिंक 200-year-old कंपनी, उन्होंने भी फंड रेज करा हुआ था. सो आई डोंट थिंक सो कि अगर कोई बंदा अच्छे से बिजनेस चला रहा है तो उसको कभी कोई प्रॉब्लम आएगी. मतलब इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, हर बिजनेस के हर फाउंडर के अपने अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट दिस विल नॉट लेड टू लूजिंग द होल ब्रांड और द कंपनी. तो फंडिंग विंटर आई थिंक शुड नॉट मेक एन इम्पैक्ट, एंड इट विल मतलब थोड़ा सा एफर्ट बढ़ जाएगा. और येस, जब दोबारा से साइकिल शुरू होगी तो भी आई थिंक इकोसिस्टम हैज़ मैच्योर टू एन एक्सटेंट कि फालतू के बिजनेस को फंडिंग नहीं मिलेगी. अगर आप सही तरीके से बिजनेस चला पा रहे हो, आपको फंड मिलेंगे और आपको अच्छे फंड्स मिलेंगे. Yeah, that has been a hard reality. Yeah. For these. So I'll be very honest. I think इसमें ना इन्वेस्टर्स की ही गलती है. क्यों है कि आपने जब फंड दिए, आपने बोला स्केल अप करो, उसने महीने का 50 लाख रुपए बर्न करके स्केल अप कर दिया. अब उसको पता ही नहीं है, उसकी परवरिश उस तरीके से हुई है कि उसको यही नहीं पता प्रॉफिट होता क्या है. तो अगर मुझे ये नहीं पता कि मैं प्रॉफिट होता क्या है तो मैं कहाँ से प्रॉफिटेबल बनाऊंगा. अब आप एकदम से आपने सब चीज़ें स्टॉप कर दिया, आप कहते हो नहीं पहले प्रॉफिटेबल बनाओ, तो फिर वही होगा कि जो फेबल ने करा, फॉर एग्जांपल 800 में से 700 एम्प्लॉयज़ निकाल दिए, तो प्रॉफिटेबल तो फिर ऐसे ही होएगा, क्योंकि खर्चे ही आपको अल्टीमेटली कम करने पड़ेंगे. सो इन कंज्यूमर गुड्स ऑल्सो यू कैन नॉट चेंज द MRP. पार्ले जी है, डेयरी मिल्क है, इन लोगों ने MRPs नहीं चेंज करे हैं, इन्होंने क्वान्टिटीज़ रिड्यूस कर दी हैं, इन्होंने अल्टीमेटली खर्चे कम करे हैं अपने. सो आई हैपन टू मीट वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ अ वेरी बिग अगरबत्ती कंपनी. उन्होंने बोला कि हमने 20 साल बाद MRP बढ़ाया था अपना, एंड सेल्स वेंट डाउन, तो हमें वापस से MRP ठीक करना पड़ा. सो कंज्यूमर, क्योंकि अफोर्डेबल सेगमेंट में थिंग्स आर सो सेंसिटिव कि आपने ₹1 भी MRP बढ़ाया तो कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा. No, makes sense. So the insight from that is
the FDI flow in the Right, country was, right. was a lot, and then once the FDI flows comes in, the investors get bullish. They put a lot of money in the Right, startups, right. and then this whole cycle goes on. And then Right. once the FDI flows really stops, the investors get finicky. Right. Amazing. So very, very insightful, Bharat. I think we have largely covered the pre-fundraise preparedness. That's right. Let's dive straight on those one-on-one investor meetings, and this is my favorite part. Right. Talk to us about what really goes into these meetings, some raw emotions that you have experienced Right. during these intense meetings, and how founders should create the best impressions on venture partners today. So I think that's a process. Every founder like depends on what kind of round he is raising. हर फाउंडर 2-3 महीने लगातार पिच करता रहता है एंड उस 2-3 महीने में वो सीखता है कि अच्छा मैंने ना इस पिच में ये गलती कर दी तो मैं नेक्स्ट पिच में ध्यान रखता हूँ. सो इट इज़ अ प्रोसेस वेरी आई थिंक वेरी इंटिमिडेटिंग एंड वेरी सो फॉर लाइक टू बी अ फाउंडर अगर आप सोचते हो कि आपका पेशेंस लेवल ये है तो आपको यहाँ तक टेस्ट करा जाएगा. सो ड्यूरिंग द पिचेस आप लाइक एक दिन में 5-5, 6-6 इन्वेस्टर्स को पिच कर रहे हो तो 1-1.5 घंटा आपकी नॉर्मल पिच चलती है. वही सब चीज़ें आपको दोबारा पूछी जा रही है. तो एवरीबडी वाज आस्किंग मी यार कि तेरे को सारे आंसर्स कैसे पता थे शार्क टैंक में. मैंने कहा यार मैं अगस्त में मैंने राउंड क्लोज करा, मैं अप्रैल तक तो सबको पिच ही कर रहा था तो वो सब कुछ रटा हुआ था. तो आई थिंक जो पिचिंग वाला सेशन है आप अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग लोगों को पिच कर रहे होते हो. फिर आपको फॉलोअप्स करने होते हैं कि यार वी हैवंट हर्ड बैक फ्रॉम यू, आर वी लाइव और आर वी लाइक यू आर नॉट गोइंग अहेड विद अस. तो मतलब इट इज़ अ प्रोसेस. तो फिर उसमें क्या होता है कि 4-5 इन्वेस्टर्स फॉर एग्जांपल 10 में से 3 इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हैं. फिर यू हैव टू मेक द राइट मिक्स कि कौन लीड बनना चाहता है. सो इन द एंटायर राउंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द लीड कि मेरा लीड इन्वेस्टर कौन है, बिकॉज अल्टीमेटली उसकी चलेगी. फिर बाकी इन्वेस्टर्स अग्री होते हैं कि नहीं होते हैं कि भाई हमें एज अ लीड इस इन्वेस्टर के साथ काम करेंगे कि नहीं करेंगे. वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो and the main part comes when you are just about to get the term sheet कि अब ये इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड है एंड यू हैव टू बी वेरी डिलिजेंट एंड आपको सबसे तब भी टच में रहना है. ऐसा नहीं है कि मेरे को इनसे कमिटमेंट आ गई है तो मैं इनको छोड़ दूंगा. आई हैव टू कीप देम अपडेटिंग क्योंकि कमिटमेंट आने के बाद भी इंटरेस्ट लूज हो जाता है ग्रेजुअली. सो यू हैव टू बी ऑन योर टोज जब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ जाता. Term sheet, signing SSHA doesn't mean anything till the time you get funds into your account. Yeah. मतलब मैं भी लाइक व्हेन आई वाज पिचिंग कोई बोल देता था कि ठीक है हम 100K का कमिट कर देते, मैं भी बहुत एक्साइट हो जाता था कि यार 100K की कमिटमेंट आ गई. बट फिर पता चलता है अच्छा वो तो बैकआउट कर गया. सो यू हैव टू बी ऑन योर टोज जब तक आप पूरा फंड रेज प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर लेते. सो इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस. यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस or for a seed round also you need at least 4 to 5 months dedicatedly on fundraising. मतलब जो बड़े बड़े rounds है I have heard that founders from big startups they don't come to India for an year or year and a half just to raise funds क्योंकि बड़े बड़े राउंड सारे के सारे बाहर से होते हैं. तो वो लोग 1-1, 1.5 साल इंडिया ही नहीं आते हैं. So बायजूस है, स्विगी है और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनका मैंने सुना है कि मतलब फाउंडर्स बाहर ही रहे मतलब जब तक वो फंड रेज कर रहे थे. बिकॉज इट इज़ सच अ प्रोसेस कि आपको उसके अंदर पूरा घुसना पड़ेगा अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे. तभी इन्वेस्टर्स ना सिंगल फाउंडर कंपनी को प्रेफर नहीं करते हैं बिकॉज एक फाउंडर क्या क्या करेगा क्योंकि जब वो फंड रेजिंग कर रहा है तो वो कुछ और नहीं कर सकता. एंड इट इज़ दी हार्ड ट्रूथ. इसलिए यू नीड टू हैव 2 or more than 2 फाउंडर्स कि हाँ वो बंदा ऑपरेशन देख रहा है, वो बंदा मार्केटिंग देख रहा है और मैं फॉर एग्जाम्पल फंड रेजिंग देख रहा हूँ. So in your team, you were the one looking Yeah, at I was fundraising the one primarily. doing the And fundraising. 4 to 5 months primarily, 6 hours Yeah, every day, 7 hours yeah. every day into meetings. Minimum. That's a and the best part is कि आपकी जब वो मीटिंग हो गई तो आपको उस ईमेल का whatever is the ask of the investor for the data you have to prepare that data also. And उसमें भी बहुत एनर्जी जा रही है. तो इट इज़ लाइक यू हैव टू वर्क 15 to 18 hours a day अगर आप फंड रेजिंग कर रहे हो तो. आप बस बीच में 1-2 दिन आराम ले लो जिस दिन मीटिंग्स नहीं है या फिर आपने बोल दिया यार मंडे मेरा टाइट अप है जस्ट बिकॉज मेरे को थोड़ा सी शांति चाहिए एंड मैं ट्यूसडे को कॉल कर रहा हूँ. सो यू हैव टू वर्क एटलीस्ट 15 hours a day if you are raising funds. Any of these interesting stories that any anecdote that you would have with a founder, with any of the venture partners, any raw emotions that you could share with the audience?
सो मैंने क्या करा था, आई स्टार्टेड रेजिंग इन जुलाई 21। तब मुझे लगा था, तब मेरी आई थिंक रेवेन्यूज़ वर समवेयर अराउंड 10 लाख रुपीज़ अ मंथ। तब मैंने बहुत हाई वैल्यूएशन बोली और मैंने कहा मैं इस वैल्यूएशन पे रेज करना चाहता हूँ। एंड आई पिच्ड नियरली 12 इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग एंजल प्लेटफॉर्म्स। एंड एक दिन ऐसा था कि 12 के 12 इन्वेस्टर्स ने एक ही दिन पे मना कर दिया। These are angels. These are angels and like very small VCs, very small, कि जो मतलब 300K का भी चेक डाल देते हैं फॉर एग्जांपल। तो एक ही दिन पे 12 के 12 इन्वेस्टर्स ने मना कर दिया। एंड आई वाज लाइक शिट, ये क्या हुआ? बिकॉज इट एक्चुअली, सो रिजेक्शंस लेने में बहुत आपको दम चाहिए। एंड इतने रिजेक्शंस एक दिन में आने इज़, सब कुछ हिल जाता है मतलब उस टाइम पे। तब फिर हमें समझ में आता है कि हमारी गलती क्या थी। तो वो एक इमोशन बड़ा ज़रूरी है कि आपको ना यू कैन नॉट टेक रेस्ट ऑनेस्टली। मतलब दिस आई हैव लर्न इन माई कंसल्टिंग कंपनी ऑल्सो, कि मैं फॉर एग्जांपल 3 महीने 4 महीने पिच करता था, उसमें मैं 5-6 क्लाइंट्स ले आता था, फिर मेरे को लगता था मैं आराम कर लूँ। जैसे ही मैं आराम करता था वैसे ही बिज़नेस स्टेबल, मतलब आपको लगता है कि यार अब तो नीचे जा रहा है, बिकॉज आप किसी और माइंडसेट से बैठे हुए हो, तो आप बैठ नहीं सकते हो। एंड यू नीड टू हैव दैट पावर इन यू टू टेक रिजेक्शंस। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Makes sense. And 4 months dedicatedly Yes. on fundraising. Yes. How many investors did you go and pitch to? And I pitched nearly 8 to 10 investors. 8 to 10 investors. How many of them got interested in the I venture? think 3 or 4 were interested. And then you would have multiple meetings with them. How many meetings would you have with a single investor? So Artha Ventures के साथ हमारी 3-4 मीटिंग्स हुई थी. Then I had a meeting with their fund head Anirudh Damani, very nice guy. And उसके बाद आई थिंक वी गॉट द टर्म शीट। और फिर ऐसा नहीं होता कि टर्म शीट के बाद तो और ज़्यादा आपके लिए ना चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती हैं, बिकॉज ड्यू डिलिजेंस चल रहा है। फिर क्या होता है कि आप एक कट ऑफ डेट डिसाइड करते हो कि मुझे इस डेट तक का डेटा देना है। ड्यू डिलिजेंस में आपके 2 महीने निकल गए, तो इन्वेस्टर कहते हैं नहीं इस महीने का भी फॉर एग्जांपल डेटा दो। तो वो, अब मेरे डैड एक चीज़ बोलते हैं कि आगे की सुध बिसार के पीछे की सुध ले, कि आप आगे तो चलते रहो और पीछे का भी आप हिसाब रखो कि क्या हो रहा है। तो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस में ना आप और ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि आपको जो पीछे का डेटा है वो भी आपको चेक करके देना है पूरा का पूरा, एंड आगे भी आपको डेटा सही मेंटेन करना है, आपको वो भी चीज़ चेक करनी है, क्योंकि इन्वेस्टर कभी भी पूछ लेगा उस डेटा के लिए। एंड ऑब्वियसली पूछेगा यार, मतलब वो पैसे डाल रहा है। एंड इट इज़ नॉट ईजी टू पुट फंड इन अ स्टार्टअप जिसका कोई एसेट बेस नहीं है। एंड वो इट इज़ सिंपली अ बेट, नथिंग एल्स। तो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि उसके बाद आपका फिर SSHA वाला पार्ट आता है, फिर SSHA पे नेगोशिएशंस होती हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं, मतलब कुछ टर्म्स होती हैं जो विच आई विल हाईलाइट एज वी गो फॉरवर्ड, कि ये चीज़ क्या है। तो आई कैन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मोस्ट ऑफ देम। तो फिर आपका उसके ऊपर नेगोशिएशंस होती हैं, फिर आपका SSHA साइन होता है। SSHA में भी फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर मल्टीपल इन्वेस्टर्स, 10-12 लोग हैं, तो आपको सबसे साइन करवाना है, वहाँ पे भी सबसे फॉलोअप करना है, बिकॉज वो भी वाई इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट कि अगर उसने साइन नहीं करा तो वो पीछे हट जाएगा। आई हैव सीन इंस्टेंसेस विद स्टार्टअप जहाँ पे बंदा SSHA साइन करते करते मना कर देता है कि नहीं यार मेरा ना कन्विक्शन नहीं आ रहा। सो इट हैपन्स, मतलब विद वन ऑफ दी स्टार्टअप्स, आई विल नॉट टेक द नेम, उनके इन्वेस्टर ने SSHA साइन करते करते एक दिन पहले बोल दिया कि नहीं यार मेरा ना कन्विक्शन नहीं आ रहा। But term sheet is a binding document. टर्म right? शीट इज़ नॉट अ बाइंडिंग डॉक्यूमेंट। Okay. सो टर्म शीट के ऊपर लिखा होता है नॉन बाइंडिंग टर्म शीट। There are binding term sheets as well, but I think that is a very late stage when you get binding term sheets, because it is binding on both the investor as well as the founder, and their investor needs a very strong reason to deny. जैसे फॉर एग्जांपल उसके साथ था एलॉन मस्क के साथ इन द डील, ट्विटर डील, आई थिंक वो बाइंडिंग टर्म शीट होगी, व्हाट आई कैन फील इज। तो वहाँ पे इन्वेस्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए टू एक्चुअली से नो। That's fascinating, Bharat. Thank you for sharing those insights. Yeah. So during these meetings, there might be a lot of negotiation around the company's Right. valuation, or in simpler terms, the price the investor is willing to pay for a part of the company. And with the pretext that we have India's most loved brands now, Right. say for example, Mamaearth facing a lot of heat on social Right, media right. about these high public market multiples, make us understand how has the funding environment really changed. Also, what are these relevant valuation multiples in the CPG industry,
And how can founders justify these multiples today? Like, say, Mamaearth is one in a case where they are asking for, I think, 20 or 25x of what they are doing. 120x of Yeah, profits and 120, all. right. Yeah. So I think that's one in a case, and I think with the so they have grown up really well, but I also don't think so that valuation is justified if I am the investor. Uh, if I talk about multiples in the CPG industry, so initially, so multiples actually depend on a lot of things. That what kind of brand you have built, how you are disrupting the brand, and market size कितना बड़ा है. Yeah. उसके ऊपर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करते हैं, एंड कितने अभी लोग हैं फॉर एग्जांपल मार्केट में. सो यूजुअली पहले मल्टीपल्स होते थे 5-6x के, फिर वो 4x पे आ गए, एंड नाउ दे आर एट समवेयर अराउंड 3x ऑन एन एवरेज. तो उन मीटिंग्स में नेगोशिएशंस क्या होता है, नेगोशिएशंस जो टर्म शीट से पहले वाली मीटिंग होती है ना, उसमें नेगोशिएशंस होते हैं, क्योंकि फिर उसके अकॉर्डिंग उनको टर्म शीट आपको इशू करनी है. तो अदरवाइज नेगोशिएशंस वो या तो क्या होता है कि फिर वो बहुत इनिशियली आपको मना कर देते हैं कि नहीं, द काइंड ऑफ वैल्यूएशन यू आर आस्किंग, वी डोंट इन्वेस्ट एट दिस काइंड ऑफ वैल्यूएशन. क्योंकि ये भी चीज़ फाउंडर के लेवल पे ठीक नहीं होती कि फॉर एग्जांपल उसने 25 करोड़ की वैल्यूएशन मांगी और उठाव फंड जो 10 करोड़ की वैल्यूएशन पर आया. तो आई थिंक जो वैल्यूएशन जो नेगोशिएट होती है वो टर्म शीट से पहले वाली मीटिंग में होती है. उसके बाद कुछ नेगोशिएशन नहीं होती हैं, एंड मल्टीपल्स आर यूजुअली 3x 4x 5x 6x डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितना बड़ा ब्रांड बना दिया. एंड आई थिंक इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं. तो सीड स्टेज पे यूजुअली 3x 4x का आपको मल्टीपल मिल जाता है. Yeah, and what do you think? What do these founders can do best to justify these multiples? Is it because they cannot control the Right. number of competitors coming in the Right. market today, right? They cannot. So the market size is already defined. Right. The team is already defined. Right. What they have in hand, maybe the future plans and the Right. future projections, which they can pitch to the investors today. Right. So how do you justify these multiples? सो एक्चुअली क्या होता है कि सो आई काइंड ऑफ पार्शली अग्री विद द थिंग कि मार्केट साइज डिफाइंड है. सो लाइक अनिरुद्ध, हु इज़ द हेड ऑफ अर्था वेंचर फंड, ही टोल्ड मी कि यार या तो आप अपनी मार्केट में 5% कैप्चर कर लो, साथ साथ अगर आपको लगता है 11,000 करोड़ की मार्केट है तो मैं 1,000 करोड़ का और स्पेस बना सकता हूँ मार्केट में एडिशनल, Okay. विच इज़ ऑल्सो पॉसिबल. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगरबत्ती की जो मार्केट है दैट इज़ एंटायरली मेजरली अफोर्डेबल इन रेंज. मतलब वहाँ पे यहाँ तक भी जो अफोर्डेबल ब्रांड्स हैं वहाँ पे यहाँ तक भी प्रॉब्लम होती है कि 30 रुपये की डब्बी में कितनी अगरबत्ती आ रही है. तो जिसमें 25 आ रही है, जिसमें 30 आ रही है, जिसमें 35 आ रही है, तो कंज्यूमर 35 वाली खरीद लेता है, बिकॉज ही इज़ नॉट कंसर्न कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है. तो एक तो आप अपने लिए एडिशनल स्पेस भी बना सकते हो मार्केट में विद द काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट यू आर बिल्डिंग. Yeah. Because a lot of our customers especially they quit using अगरबत्ती long back क्योंकि उसके धुएं से उनको प्रॉब्लम हो गई थी. And let me tell you, like, incense is one of the most overlooked cause of cancer in India because it is related to religion. People don't look it as a cause of cancer. So बहुत लोग अगरबत्ती यूज़ करना छोड़ चुके हैं, और जब उन्होंने नरमालिया की अगरबत्ती यूज़ करी है, दे हैव अगेन स्टार्टेड यूजिंग अगरबत्ती बिकॉज वो उनको इरिटेट नहीं कर रही है, एंड इट हैज़ अ वेरी सूदिंग स्मेल. तो या तो आप अपने लिए खुद स्पेस एक क्रिएट कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो कैप्चर सम पोर्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग मार्केट. मल्टीपल्स जस्टिफाई करना इज़, आई थिंक, देखिए मेरे हिसाब से आपको वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सेस मांगनी नहीं चाहिए, क्योंकि एंड एज अ फाउंडर आपको उतना, या फिर आपके मेंटोर्स आपको बता सकते हैं, या फिर फेलो फाउंडर्स बता सकते हैं कि यार कितनी वैल्यूएशन जस्टिफाइड है. आप अगर एक बार रेस कर लेते हैं, वो एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, जो आपको आगे और रेस करने में हेल्प करेगा. तो फॉर एग्जांपल आप उस चीज़ पे फोकस रहो कि आपको कितना पैसा चाहिए. ऐसा भी नहीं है कि आप 50% इक्विटी दे दोगे, बट हाँ, मतलब एक मेरी ब्रैकेट है कि मैं 18 से 23% इक्विटी इस पर दे दूंगा फॉर एग्जांपल. लोएस्ट इज़ 18 एंड हाईएस्ट इज़ 23. तो उतनी आपकी कॉमन सेंस या फिर उतनी आपकी वो काम करनी चाहिए, एबिलिटी टू जज कि मेरे को कितनी वैल्यूएशन मांगनी है. तो विद द काइंड ऑफ ब्रांड, सी एवरीबडी लव्स हिज ब्रांड, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो जन्म के साथ ही 100 करोड़ का. Yeah. जैसे आई वॉज रीडिंग अबाउट व्हाट संजीव बिखचंदानी सेज कि CM1 CM2 ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती हैं, या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है.
विच इज़ वेरी ट्रू। एंड मतलब फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने शार्क टैंक पे क्या बोल दिया कि मैं मेरा CM2 पॉजिटिव है। Yeah. तो इट इज़ दैट। एंड आप कितनी जल्दी प्रॉफिटेबल हो सकते हो, बिकॉज अगर आप प्रॉफिटेबल हो ना तो फिर आपका सिक्का चलेगा कि यार मेरे को पैसा नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल आई हैव सीन फाउंडर्स जो मना कर देते हैं इन्वेस्टर को, नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, और फिर इन्वेस्टर बोलता है नहीं नहीं मुझे बताना तेरे को क्या वैल्यूएशन चाहिए। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ नेगोशिएटिंग कि आपको पता है कि आपका हाई वैल्यू प्रोडक्ट, हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, आप प्रॉफिट बना रहे हो। एंड देन क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ स्केलिंग अप के लिए पैसा चाहिए कि मेरे को ये चीज़ फॉर एग्जांपल 2 साल बाद करनी थी तो मैं अभी कर लेता हूँ सिर्फ उस चीज़ के लिए, अदरवाइज आई एम प्रॉफिटेबल। Yeah. तो उतना आई थिंक एज अ बिजनेस ओनर यू शुड हैव द एबिलिटी टू जज कि मेरे को कितनी वैल्यूएशन मांगनी है, कितना मल्टीपल मांगना है, एंड ऑल दैट स्टफ। जैसे ये गलती मैंने करी थी इनिशियली कि जब मेरी 1.5 करोड़ रुपए साल की सेल और मैं 20 करोड़ की वैल्यूएशन मांग रहा हूँ। सो फिर मुझे बाद में पता चला कि नहीं यार, मतलब आई थिंक दैट्स नॉट जस्टिफाइड। सो Also, I want to focus on this distinction between when e-commerce aggregators today that have come into the market, Right. they start acquiring brands versus you go to a VC fund and they putting money in your brand. So they are today, as far as I know, e-commerce aggregators today are giving 3x or 4x on EBITDA, राइट whereas you are getting a 3x or 4x on your revenue. राइट So how do you make a distinction between these two valuation multiples? Because both are CPG brands, Right. both are building Right. for India and for the world maybe, but someone is getting 3x, 4x of EBITDA, someone is getting 3x or 4x of सो revenue. आई थिंक इट मोर डिपेंड्स ऑन द विजन ऑफ द फाउंडर कि वो कितनी जल्दी क्विट कर देता है। फॉर एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल मेरे को बस निकलना है यार, मतलब मेरे से फॉर एग्जांपल और नहीं हो रहा तो जिस भी वैल्यूएशन पे बिक रहा है बेच दो, क्योंकि मैं आई वॉज टेकिंग अ सैलरी, तो मेरे उससे खर्चे निकल रहे थे। एंड अभी फॉर एग्जांपल मुझे ये 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, 5 करोड़ का अमाउंट मिल जाएगा, तो इससे मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर लूँगा, साथ साथ मैं जॉब कर लूँगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द विजन ऑफ द फाउंडर कि वो उसको कब बेचना चाहता है। एंड एक्विजिशन तो अब वही वाली वो उसमें भी उन्होंने बोला था पिक्चर्स 2 में कि एक्विजिशन मीन स्टार्टअप बंद हो गया। तो एक्विजिशन आई एम नॉट लाइक वेरी मच कंफर्टेबल कि आप बहुत छोटी स्टेज पे उसको एक्विजिशन के लिए दे दो, फिर आपकी विजन नहीं थी या फिर यू आर नॉट टू मच कन्विंस्ड अबाउट योर सेल्फ कि आप क्या कर सकते हो। सो आई प्रोबेबली स्विच टू द रेवेन्यू मल्टीपल एंड नॉट द एबिटा मल्टीपल, क्योंकि ई कॉमर्स ब्रांड को वो चलाना है, उसके लिए एक बना बनाया ब्रांड मिल गया उसको, एंड वो ड्रॉपशिप मॉडल पे उसको चलाता रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसको पता है मेरे इतने डिफाइंड मार्जिन हैं, तो मैं अगर इतने रुपए का ख़रीद रहा हूँ तो मैं 2 साल में अपना पैसा निकाल लूँगा। तो वो इसलिए एबिटा के मल्टीपल्स दे रहे हैं। वेयर एज वीसी का और फाउंडर का दोनों का विजन है कि हमें इसको बड़ा बनाना है, तो इसलिए वो आपको, क्योंकि देखिए क्या है कि फाउंडर की इक्विटी कितनी है उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। जब फाउंडर की इक्विटी प्री सीरीज़ ए के स्टेज पे ही 50% से नीचे चली जाएगी तो फाउंडर का भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है बिजनेस में कि मुझे मिलेगा क्या। तो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट विजन कि आपका विजन कितना बड़ा है। Makes sense. So the insight there is that your valuation Right. is largely a function of your Right. vision Right. for the brand. Right. Makes sense. So we have largely covered the pitch decks and what happens during these investor Right. meetings. Let's focus our attention towards a more technical side of fundraising, which is the term sheet. राइट Walk us through these super important terms that founders should be wary of before accepting the term sheet from an investor. Right. So I think there are a lot of terms in the term sheet which actually are as it is mirrored in a detailed manner in the SSHA. So a term sheet is, for example, of 2 or 3 pages, and SSHA is, for example, 50 pages. Nothing more, nothing less. They are mirrored into the SSHA with a detailed explanation that what the term is. So there are terms like tag along, drag along, exit options. Then yes, there's also a term of whether the term sheet is on whom the term sheet is binding. Yeah. So the term sheets are usually binding on the founder for a definite period, like for a period of 30 days or 90 days or 60 days, and that clause is usually inserted in the interest of the investor कि इतने दिन हम आपके साथ अपनी कॉस्ट लगा रहे हैं, आप ऐसा ना हो कि आप किसी और को जाके पिच कर दो। तो उसका ये पर्सपेक्टिव होता है। टैग अलॉन्ग इज़ अ वेरी सिंपल राइट कि कल को फाउंडर अपने शेयर बेचेगा तो उसके साथ साथ वो इन्वेस्टर के भी शेयर्स बेचेगा उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में वो अपने शेयर्स बेच रहा है। सो नन ऑफ दीज कंडीशंस आई थिंक एक्चुअली मैटर, क्योंकि जब बिजनेस हो रहा होता है ना तो सब खुश होते हैं। तो ना ड्रैग अलॉन्ग आई थिंक मैंने अभी तक किसी भी स्टार्टअप में नहीं देखा कि ड्रैग अलॉन्ग
एक्टिवेट करा है इन्वेस्टर ने. ड्रैग अलॉन्ग इज कि इन्वेस्टर को एग्जिट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इन्वेस्टर ने कंपनी बेच दी एंड ही हैज़ ड्रैग फाउंडर्स अलॉन्ग विद हिम टू सेल द कंपनी. सो आई डोंट थिंक सो कि ड्रैग अलॉन्ग आज तक किसी ने भी इन्वोक करा है. देन देयर इज़ एन एंटी डाइल्यूशन क्लॉज कि अगर आप अपने जिस वैल्यूएशन पे आप रेस कर रहे हो उससे कम वैल्यूएशन पे रेस करोगे तो प्रोपोर्शनेटली आप इन्वेस्टर को शेयर ज़्यादा दोगे. उसके अंदर क्या है वो लिखने के लिए लिख दिया बिकॉज मेनी ऑफ द टर्म्स हैव कम फ्रॉम यूएस, बट उनकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन क्या है दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सो फॉर एग्जाम्पल एंटी डाइल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल वेयर द फंड्स आर रेज फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, क्योंकि फेमा सीधा सीधा बोलता है कि भाई आपका पैसा पहले आना चाहिए, उसके अगेंस्ट आप शेयर अलॉट करोगे. अगर एंटी डाइल्यूशन है तो पैसा तो आएगा ही नहीं तो आप शेयर्स कैसे अलॉट करोगे. तो देर आर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज क्लॉजेज जो टर्म शीट में डाले जाते हैं. देर इज़ अ लिक्विडेशन प्रेफरेंस जहाँ पे ये बोला जाता है कि बिफोर एनीबडी एल्स लाइक इन द फाउंडिंग टीम पहले इन्वेस्टर को पैसा मिलेगा अगर कंपनी बंद होएगी तो अगर स्टार्टअप बंद हो रहा है तो उसका वैसे भी कुछ नहीं है तो क्या ही मिलेगा. तो वहाँ पे आप देख लो कि वहाँ पे 1x का मल्टीपल है कि 1.5x का है. सो एज इन विच मीन्स कि अगर एक इन्वेस्टर ने 1 करोड़ रुपए डाले हैं लिक्विडेशन प्रेफरेंस में, लिक्विडेशन के टाइम पे कंपनी को 2 करोड़ रुपए टोटल मिले हैं सब कुछ पे ऑफ करने के बाद, तो वो जो 2 करोड़ है उसमें से पहले 1 करोड़ इन्वेस्टर को दे देंगे एंड 1 करोड़ फाउंडर्स में बच जाएगा. वहीं पे अगर फॉर एग्जांपल 1.5x का मल्टीपल है तो 1.5 करोड़ इन्वेस्टर को मिल जाएगा, 50 लाख फाउंडर्स को मिल जाएगा. एंड I think all these things are very not very important because ये worst case scenarios होते हैं. एक कंडीशन जो आपको देखनी है रिजर्व मैटर्स कि उसके अंदर थ्रू द रिजर्वेशंस इन्वेस्टर क्या क्या पावर्स मांग रहा है. सो देयर आर यूजुअली कंडीशंस कि 5 लाख से ऊपर का आप कोई खर्चा करोगे तो इन्वेस्टर से पूछोगे, या आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा की सैलरी पे कोई बंदा अपॉइंट करोगे तो आप इन्वेस्टर से पूछोगे. तो वो सब चीज़ें आपको देखनी है कि आपको मतलब व्हाट इज़ योर लिमिट ऑफ इंटरेक्टिंग विद द इन्वेस्टर की कितनी, क्योंकि आई थिंक जितनी छोटी लिमिट्स होगी ना इन्वेस्टर की भी सोच उतनी ज़्यादा नैरो आई थिंक होगी. तो आई थिंक ठीक है 10 लाख 20 लाख 25 लाख की लिमिट्स लगानी भी पड़ती है बिकॉज फाउंडर्स थोड़े से कभी कभी बेकाबू हो जाते हैं इन द प्रेशर दैट दे आर. तो वो लिमिट्स लगानी भी ज़रूरी है, बट आई थिंक रिजर्व मैटर इज़ वन ऑफ द क्लॉजेज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है टर्म शीट में. No, makes a lot of sense actually. What I can understand is ignoring these terms can sometimes turn out to be detrimental to the founder-investor relationship Right. in the long term. In the long term. Primarily, I think if we are ignoring this last term, Right. one is the liquidation preference. Right. If you are giving 1.5x or 2x, I think that should not be there. Right. Otherwise, it can be a cause of dissatisfaction because 95% of the startups eventually fail. Right. So there should. So founders should pocket something, Right. Because they put in a lot of effort. So like Ashneer Grover अपनी बुक में बोलते हैं कि 80% of the secondary should go to the founder first, which Sanjeev Bikhchandani doesn't agree with. Yeah. So which honestly I also don't agree with, क्योंकि अगर फाउंडर को सारा पैसा मिलता जाएगा तो इवेंचुअली फाउंडर का इंटरेस्ट लूज हो जाएगा. Yeah. It is all about money at the end of the day. No, makes sense. Makes Yeah. sense. But on those reserve matters that you're Yeah. talking about, right? Can you elaborate a bit on, say, a company in the seed stage? What are these terms that they should absolutely be fine with, or these terms that they should not sign a term sheet on? So honestly, like all the term sheets that I have seen till date, or all the term sheets that I have made basis the existing term sheets that I have, कोई ना मतलब बहुत ज़्यादा अजीब क्लॉज होता नहीं है यूजुअली, क्योंकि वही एक फॉर्मेट चला हुआ आ रहा है और वही चलता रहता है. तो जैसे हाँ उसमें फॉर एग्जांपल हम मॉनेटरी लिमिट चेंज करा सकते हैं. यार 5 लाख रुपए के डिसीजन के लिए मुझसे मत बोलो कि मैं आपसे परमिशन लूँगा प्लीज़, मतलब उतना आपको मेरे को लिबर्टी देनी पड़ेगी. तो इट डिपेंड ऑन दी फाउंडर कि वो कितना ज़्यादा नीड में है उस टाइम पे, क्योंकि जब इंसान नीड में होता है तो कुछ भी साइन कर देता है. तो एक तो वो चीज़ है कि रिजर्व मैटर्स में देखिए क्या है, कुछ जनरल टर्म्स होती है. जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर सकते. इफ़ देयर विल बी अ चेंज इन द शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर आप बताओगे. तो आई थिंक दीज आर द जनरल टर्म्स दैट फाउंडर शुड बी फाइन विद. जहाँ पे मॉनेटरी लिमिट्स आ जाती है कि मुझे इतने से ऊपर ये नहीं करना, इतने से ऊपर ये नहीं करना, वहाँ पे फाउंडर को देखना चाहिए कि यार मेरे को कितना इंटरेक्ट करना है इन्वेस्टर से, या फिर मेरे को कितने डिसीजंस खुद लेने हैं. सो वो एक चीज़ है कि जहाँ पे फाउंडर को देखना चाहिए कि यार ये चीज़ मेरे को I'll negotiate this. No, makes kind of sense. thing, Makes sense. That's actually quite insightful. Right. So on that very note, once you have raised money from VCs, Right. how do you maintain a great relationship with an investor
given that they bring a lot of value to the table, obviously, right. they can truly help you in your journey by providing you maybe a lot of follow-on investments, Right. expertise, partnerships. Right. So how do you maintain that relationship? इसका ना बड़ा सिंपल आंसर है कि अगर आपकी इंटेंशन ठीक है ना तो सब कुछ ठीक है. अगर मेरी इंटेंशन ही गलत है ना तो फिर मैं फॉर एग्जांपल चीज़ें छुपा रहा हूँ इन्वेस्टर से विच आर कमिंग एज अ सरप्राइज टू द इन्वेस्टर, तो ऑल दीज थिंग्स शुड नॉट हैपन. तो क्या होता है कि आप उनको MIS ठीक भेजते रहिए, आपकी उनकी जो मीटिंग है आप उनको थोड़ा सा ओपनली बताते रहिए कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या क्या नहीं हो रही है, एंड आई थिंक थिंग्स विल मूव स्मूथली. ऐसा उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बट हाँ मतलब आपकी इंटेंशन सही है अल्टीमेटली तो सब कुछ सही है, अदरवाइज़ कुछ भी सही नहीं है. तो वो वाली चीज़ है. क्योंकि अगर आपका दिमाग बिजनेस में लगा है ना कि आपको बिजनेस बनाना है तो आप सही तरीके से बनाओगे, आप गलत तरीका कोई अपनाओगे ही नहीं. तो अगर आप गलत तरीका नहीं अपना रहे हो तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम होगी नहीं. दैट इज़ द थिंग. Makes sense. Also, so in your business structure as well, when you've raised from obviously the Right. institutional partners, Artha, and then there are a lot of angels as well Right. on your cap table. And I've seen your LinkedIn as well. You post a lot about Nirmalya. What are you doing? You're socially conscious, and you're coming out with these herbal colors. So who are these posts that you do on LinkedIn? Who are these for? Is it the angels? Because I think as far as I know, for angels you don't have a necessity to send them your MIS Right. on a monthly basis. So walk us through that. Do we need to So- keep the angels happy as well? Yeah, so why we have to keep the angels happy is because जहाँ पे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं ना कि जहाँ पे सुई का काम है वहाँ पे तलवार से काम नहीं होता. तो यू नीड टू हैव बोथ ऑफ देम. यू नीड टू हैव अ तलवार एंड यू नीड टू हैव अ सुई ऑल्सो. सो VC आपको कुछ ऐसी चीज़ों का एक्सेस देता है जो एंजल नहीं दे पाता, और एंजल आपको कुछ ऐसी चीज़ों का एक्सेस देता है जो VC नहीं दे पाता. फॉर एग्जांपल मुझे एक बिज़नेस को चलाने के लिए छोटे और बड़े दोनों तरीके के कॉन्टैक्ट्स चाहिए. तो मुझे एंजल छोटे तरीके के कॉन्टैक्ट्स देगा और VC बड़े तरीके के कॉन्टैक्ट्स देगा. कभी कभी एंजल भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट देता है. जैसे हमारे में देयर इज़ एन एंजल नेटवर्क. वो मतलब दे हेल्प अस अ लॉट इन टर्म्स ऑफ कमिंग फॉरवर्ड, लाइक द अच्छी अच्छी गिफ्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ है, टू बी स्पीकर, लाइक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वो हमें देते हैं. एंड वी आर ऑनेस्टली वेरी हैप्पी विद देम. You're talking about Huddle. We are talking about Huddle. So Huddle was our accelerator. There's an investor called Dot-in Network. Dot-in, yeah. So Pranav Sanghvi heads that network, and very good people I think, and very visionary in terms of कि हमें स्टार्टअप को आगे लेके जाना है. तो वो हमें ऑनेस्टली बहुत हेल्प करते हैं. एंड MIS आई थिंक आपको सबको भेजनी चाहिए. एंजल्स को भी MIS जाती है यूजुअली. ऐसा बहुत कम होता है कि किसी एंजल कोई मिस हो गया, बाई चांस तो मिस हो गया, अदरवाइज सबको MIS जाती है. तो जो लिंक्डइन पोस्ट है, लिंक्डइन पोस्ट का मेरा एक ही पर्सपेक्टिव है दैट आई नीड टू बी प्रेजेंट एवरीवेयर. देयर शुड बी अ विजिबिलिटी व्हाट द ब्रांड इज़ डूइंग, एंड वो फिर आपको फर्दर फंड रेजेस में भी हेल्प करता है, बिकॉज अल्टीमेटली अ लॉट ऑफ पीपल आर शेयरिंग दैट, अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइकिंग और कमेंटिंग ऑन दैट. तो I think it is the intention of the LinkedIn post is to share what you are doing and where you have taken the company, which helps you to be present in minds of the people and in the future fundraisers also. No, makes sense. Also, because 50% of your business comes from corporate size as well. Right. Again, makes sense to post a lot on LinkedIn. So अब हम I think so corporate. So there was a point of view of Anupam which I don't agree with कि ये बहुत नेगेटिव फैक्टर है कि आपकी 75% सेल्स कॉर्पोरेट गिफ्टिंग से है. हाँ 75% नहीं होनी चाहिए, बट आई थिंक 40-50% इज़ अ गुड नंबर अगर आपकी कॉर्पोरेट सेल्स 45-50% वहाँ से है. एंड ही सेड कि वहाँ पे मार्जिन बनाने बड़े मुश्किल है, विच इज़ ऑल्सो आई ऑनेस्टली आई डोंट अग्री, बिकॉज हम जो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग करते हैं हम उसके अंदर बहुत अच्छे मार्जिन कमाते हैं. एंड कॉर्पोरेट गिफ्टिंग इज़ अ वे ऑफ एक्वायरिंग द कस्टमर एट अ जीरो कॉस्ट. यू कैन से अ नेगेटिव कॉस्ट बिकॉज यू अर्निंग मार्जिन ऑन दैट. तो अगर मैं फॉर एग्जांपल 10,000 बॉक्सेस का मेरे पास ऑर्डर है, उसमें से मैं 1% भी अगर लेके चलता हूँ तो मेरे 100 कस्टमर तो एक्वायर हुए एट जीरो कॉस्ट, विच अगर मैं एक्वायर करूँगा फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम से या फेसबुक से तो मेरे 30% कॉस्ट उसी में जाएगा. तो सो इसलिए लिंक्डइन पोस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ बीइंग प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम. That's actually very helpful for our viewers. Whoever is building an e-commerce venture, corporate gifting you want to start with, please keep posting on LinkedIn. So honestly, I consider myself I do very less posts on LinkedIn जो मुझे बढ़ाने चाहिए. But I have seen founders. अगर आप if you will see founder of Sirohi, Gauri Malik,
she posts beautiful posts on LinkedIn. Even Sleepy Owl, Even Sleepy Owl, yes. yeah. So I have seen founders who post on a weekly basis. Yeah. मैं पता नहीं कब मैं जागता हूँ और कब मैं एक पोस्ट करता हूँ, तो बट येस अ फाउंडर शुड पोस्ट वेरी रेगुलरली ऑन दी लिंक्डइन, बिकॉज उससे दे ऑल्सो गेट एक्सेस टू द पीपल कि लोग फॉर एग्जाम्पल कभी भी किसी को कोई कुछ क्लिक करता है तो वो बोलता है कि यार आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, लेट्स कैच अप और समथिंग लाइक दैट. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ मार्केटिंग itself, so I think they are very important. No, that's very helpful. Thanks, Bharat, for sharing that. So, Bharat, we're towards the end of our discussion. Right. And I would like to close it by asking if you can offer any advice to all these e-com founders who are watching us today and currently seeking to raise funds or in the process of raising funds. Any tips or tricks that you would want to give out to these people? So for the people who are building D2C brands, one of my advices is don't only focus on the online channel. Offline channels is are more robust one, and they are also very important for building a brand. Because for example आपने online बना लिया तो आपको offline भी present होना ज़रूरी है. एंड आप जितने भी बड़े बिजनेसेस देख लीजिए वो सारे के सारे ऑफलाइन ही बने हैं. ऑनलाइन तो बहुत कम बिजनेसेस बने हैं. मामा अर्थ फॉर एग्जांपल, वो ऑफलाइन ही उनकी सेल्स है, ऑनलाइन कोई बहुत ज़्यादा सेल्स नहीं है. तो ऑफलाइन पे भी आई थिंक इक्वली फोकस होना चाहिए. सेकेंडली, इफ़ यू आर रेजिंग फंड्स, आप अपनी कुछ भी करेंगे, आप अपना नया बिजनेस शुरू करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपकी वर्किंग बहुत कंक्रीट होनी चाहिए, बहुत रोबस्ट होनी चाहिए कि मैंने इतनी वर्किंग करी थी, फिर उसको टाइम टू टाइम चेंज करना कि वेरिएंस कहाँ से आ रहा है. वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. बी रेडी फॉर एवरीथिंग इन लाइफ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने 10 इन्वेस्टर्स को पिच करा तो उसमें से 5 हाँ बोल देंगे, हो सकता है 10 के 10 मना कर दें. और आपको लग रहा है कि फॉर एग्जांपल आइडिया बहुत अच्छा है, एंड इट इज़ नॉट अबाउट आइडिया, इट इज़ अबाउट द एग्जीक्यूशन. क्योंकि आइडिया तो ये हिंदुस्तान है, आप रिक्शे वाले को भी पकड़ोगे उसके दिमाग में भी 100 आइडियाज़ हैं. लेकिन इट इज़ मोर अबाउट द एग्जीक्यूशन, दैट हाउ यू आर एक्चुअली मेकिंग इट पॉसिबल. सो दैट इज़ द थिंग. Oh, lovely. I think that has been super insightful. I honestly had a lot of aha moments, and my fundraising game has definitely become a lot more stronger. Right. Thank you for joining us for this conversation, Bharat. Thank you so much, Yash. It has been a pleasure hosting you. Pleasure is all mine. Thank you so much.